Jai Bharat guys, welcome back to another podcast video that has been brought to you by me Rishabh Rajput and Dr. Rakesh Arya. So the last podcast video that we recorded on this channel absolutely did well, and you guys gave us a lot of love and lot of positive response on that video, and I hope you will give that positive response, that kind of love in this video as well. And let me tell you that these sort of videos take a lot of efforts, be it editing, be it production, or be it content writing. So I hope you can understand. So please watch this full video, watch this entire podcast, learn from it, quench your knowledge, and also to support us, subscribe this channel and give this video a big like. It helps us a lot, and also share it with your friends to enhance their knowledge as well. So let's dive deep into this conversation. Dr. Rakesh Arya, glad to be back with you and sharing frame once again with you. So the last podcast was full of energy, full of learnings, and full of your sharp insights that you have learned over time. And I hope this podcast gets more views than that, so that your sharp insights can reach more and more people. So thank you so much. Thank you. Okay, unlike last time, the weather is quite frosty and chilling this time. So what would you like to say about that? Any comments on the weather? See, weather is something like your environment. Right. It gives you warmth और coldness. हम जो feel करते हैं ना अपने शरीर से, जी, वो हम मन से feel करते हैं. जैसे हम दोनों धूप में बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कोजी, तो मन से बातें भी कोजी ही निकलेंगी. जी. अच्छा, so the highlight of the last podcast that we had done a couple of months ago was clarity, right? You emphasized a lot on clarity, but they were just insights. This time, my audience, your audience, and the people who are new to this channel would like to know the concept of clarity in detail. So I would like you to stress upon clarity in details this time, so that people can understand it thoroughly. Okay. हम अपने जीवन में जब भी कुछ करना चाहते हैं या कहीं फंस जाते हैं जी, कुछ करते हुए, तो एक ही चीज़ है जो जीवन में आपको वहाँ से निकाल सकती है या बढ़िया प्लानिंग में काम दे सकती है. That is called clarity according to my awareness, realization, experience, whatever you call it. और clarity को समझने के लिए हम इसको इस तरह कहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं बस में जाके बैठ जाए और जब कंडक्टर आके बोलेगी सर आपको कहाँ जाना है, जी, बोला कहीं ठंडी जगह ले चलो. बोले तो ठंडी जगह का नाम तो बताओ. बोला कहीं भी ठंडी जगह ले चलो. तो बोला को स्टेशन मनाली, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल कुछ बताओगे तो वहाँ की टिकट दूंगा ना. दैट इज़ कॉल्ड क्लैरिटी. ऐसी दूसरा एग्जाम्पल तो होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि कुछ हल्का सा खाने में दे दीजिए. अब ये आपका हल्का क्या है और उसका देने वाले का हल्का क्या है वो समझ नहीं आता, और इसके बाद से कई बार फिर आदमी का मूड या रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आता है, आपको ये भी नहीं पता है. सो बेटर है कि हम अपने हिसाब से बता दें क्लैरिटी क्या है. अब क्लैरिटी में जो मैं विश्व में लोगों को सिलेबस में पढ़ाता हूँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज़ को, तो उसमें 4 कॉलम रहते हैं. क्योंकि आपने डिटेल में बोला है तो सिलेबस का ये थोड़ा हिस्सा दे रहा हूँ कि ये कई लाख रुपए की मूल्य का सामान है. हालांकि अमूल्य है, बट फिर भी अगर मॉडर्न बिजनेस इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर, उसमें डिजिट्स होने चाहिए कि मुझे ये चाहिए. जैसे काफ़ी बार लोग ना मैंने देखा इंटरव्यू में आते हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है. अब ये बड़े की डेफिनेशन क्या है? बड़ा मकान बनाना है. तो बड़ा मकान किसे कहते हैं? आप बोलो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर, 1000 मीटर में, इतने मंजिला, वहाँ पे ये होना चाहिए. उसे कहते हैं कि मेरे को ये बड़ा चाहिए. हर एक का बड़ा अपना अपना है ना. किसी को अगर किराए के मकान में रह रहा है झोंपड़ी में, उसको तो 50 गज का ही बहुत बड़ा लगेगा, और जो ऑलरेडी 100 गज में रह रहा है उसका 1000 गज बड़ा लगेगा. तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. सो व्हाट मतलब क्लैरिटी स्टार्ट्स विद व्हाट. Okay, so you mean that you need to be very specific about what do you exactly want. Yes. Okay, so first thing is that. Yes. Right. Next. What के बाद why. अभी पूरी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, लोगों को why नहीं पता, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं. लोगों की शादी होती है तो मैं भी करूँगा या करूँगी. अब वो इतना बड़ा हो गया, लोग क्या कहेंगे. तो वैकेशन पे जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ग्रेजुएशन करानी है. मतलब मैं लोगों से मिलता हूँ, अजीब सवाल के जवाब देते हैं, उनके वाई का जवाब ही नहीं है. आप जब व्हाट फिक्स कर लें उसके बाद वाई ज़रूर पूछें, ताकि जब वाई फिक्स कर लेते हैं तो आपको हाउ में दिक्कत नहीं आती, कैसे करूँ.
जैसे आपने व्हाट क्लियर कर लिया, आपने वाई पे काम किया कि मुझे ये इसलिए करना है। तो आपने सुना होगा ना डायलॉग, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। तो वो शिद्दत का मतलब शिद्दत के लिए व्हाट और वाई क्लियर चाहिए पहले, राइट। ठीक है। तो ये क्लैरिटी की डिटेल्स बता दी मैंने, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज और दो कॉलम रह गए। 2 अगली बार बताएंगे ना, सारा आज ही पूछ लोगे तो फिर बाकी पॉडकास्ट में क्या करोगे। ओके, नाइस, फैंटास्टिक आंसर। सो it's like an amazing kickstart to this podcast. So next thing I would like to ask, is there a connection between politics and entrepreneurship? Like, do you think that somewhere politics and entrepreneurship is connected? Because ever since the Modi has become the prime minister of this country, I have seen a high tide of entrepreneurship and startups. Because as far as I have achieved some political maturity, I won't say that I am a political expert, but I still do political commentary. So as far as I have understand his tenure of his working, I think startups have become more rampant and more rapid. And TV shows like Shark Tank India and more shows like this and YouTube channels which are promoting startups are helping the people knowing more about the startups, businesses, entrepreneurships. What do you think about this? देखिए ऋषभ जी, आपने जो सवाल पूछा है ना, वो 95% अंग्रेजी में पूछा है जी। और इसीलिए हम कहते हैं, इवन बिल गेट्स भी मानता है कि कंप्यूटर के लिए सबसे सूटेबल लैंग्वेज संस्कृत है जी। जो हमारी मातृभाषा है ना हिंदी, और उसकी जननी है संस्कृत जी। वो बोलते ही ना आपके अर्थ बड़े साधारण हो जाते हैं। तो आपने बोला पॉलिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, इनका क्या संबंध है जी? यू आस्क व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ और इतना सरल हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के, ऑडियंस को भी मजा आएगा। तो पॉलिटिक्स मीन राजनीति। अगली बार अगला क्वेश्चन हिंदी में ही होगा। तो पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी, साहसी। तो आप ये समझ लीजिए राजनीति मतलब घर भी राजनीति के बिना नहीं चलता, कहीं दुकान भी राजनीति के बिना नहीं चलती। यारी दोस्ती में आप किसी को कहते हो ना मैं निकल रहा हूँ बस थोड़ी देर में, जबकि आप निकले नहीं हो अभी, तो आप हर जगह राजनीति कर रहे हो। राजनीति के बिना जीवन ही नहीं है। ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, बात नहीं होती, वो बात अलग ही है। हम कह के सुन के जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, कि साइकिल क्या सीखते हैं हम लोग, किसी ने धक्का दिया, पकड़ा, छोड़ दिया, 2-3 बार घुटने चले, साइकिल सीख ली। ऐसे हम जिंदगी में राजनीति सीख ली जी। अब राजनीति के बिना जब कुछ नहीं है तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगी? वहाँ तो नीचे भी लोग हैं, ऊपर भी लोग हैं, वेंडर भी हैं, क्लाइंट भी है, टीम भी है, आपके सपने भी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? उद्यमी और साहसी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं। तो आप ये समझ लो कि राजनीति उद्यमी होने के लिए बहुत ज़रूरी है, साहसी होने के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है, और ये सीखनी पड़ती है। और सीखने के लिए आपको कृष्ण जैसा, भीष्म जैसा कोई गुरु या मेंटर चाहिए होता है। आपने महाभारत में देखा होगा, कई बार विदुर भीष्म को समझा रहे होते हैं, भीष्म कहते हैं कि विदुर ये सब मैंने ही तो तुम्हें पढ़ाया है। फिर विदुर कहते हैं कि लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ना, आर यू कंफर्टेबल विद पॉलिटिक्स, डिस्कसिंग पॉलिटिक्स हियर? आई एम नॉट कंफर्टेबल विद पॉलिटिक्स बिकॉज दैट इज माय एक्सपर्टीज। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिटिक्स, उसको रिलेट करने के लिए क्या संबंध है, मैंने उसका जवाब दिया। अगर आप मोदी जी की बात करेंगे बार बार, तो मोदी जी का पोर्टफोलियो अलग है, मेरा अलग है। मोदी जी ने मुझे अपने कैबिनेट में कुछ नहीं बनाया है, तो मैं तो अपना काम करता हूँ जो मुझे समझ आता है पॉलिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाता हूँ, मेंटर करता हूँ, तो मैंने वहाँ से लिंक किया है। अगर आप मोदी जी से संबंधित बात करेंगे तो मुझे नहीं पता उनके घर में वो कैसे सोचते हैं। राइट अच्छा, सो मैं ना आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, होमो डेस करके एक किताब है, युवाल नोआ हरारी, आई थिंक आप जानते हैं उन्हें, उनकी लिखी हुई किताब है। तो उस किताब का जो रियर कवर है ना, जो उसका बैक कवर है, उसके ऊपर लिखा है कि पीपल टुडे आर डाइंग मोर बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ हंगर। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? मतलब मेरे को भी इसका इम्पैक्ट महसूस हुआ। तो ये क्या जो फेक प्लेजर्स आजकल के लोग जो ले रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है, देखिए मटेरियल चीज़ों के बिना मैं मानता हूँ कि मॉडर्न लाइफ है नहीं, राइट, ये कहीं ना कहीं आप भी मानते होंगे। तो मतलब जो अपने आप को एक वो फेक तरह से जो लोग प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, ये जो फेक प्लेजर्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का आज ये हाल हो रहा है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा। मैंने एक नया सब्जेक्ट लिखा है जी, उसके शुरू के 2 हिस्से बहुत थोड़े बताऊंगा क्योंकि वो आपके सवाल से कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने पूछे नहीं हैं तो बताने जरूरी है। तीसरा आपके सवाल का जवाब होगा। राइट, हर आदमी के सपने हैं, और जो सपने हैं ना, तो सपने में सह और अपना,
सह माने साथ, अपना कुछ नहीं है, सब उधार का है। तो जितने भी लोगों के सपने हैं 99.9% उधार के हैं। अब ये जो सपने हैं वो किस चीज़ से बने हैं, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं? नंबर 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, एंड नंबर 3 प्रूविंग समथिंग इन सोसाइटी और ऑर्बिट। हम कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अरे यार उसने, यार ऋषभ ने रेबन का चश्मा लिया, मुझे भी लेना है। अब वो रेबन का चश्मा ऋषभ ने क्यों लिया वो उसे नहीं पता, उसका वाटर भाई क्लियर नहीं है, लेकिन उसने क्योंकि ऋषभ को देखा और ऋषभ के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ऋषभ को कमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे भी कमेंट्स। तो झूठी प्रशंसा के चक्कर में आदमी कई बार फेक प्लेजर के लिए कुछ भी करने लगता है, वो उसको अपना सपना है ही नहीं। मैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं राकेश जी मैंने कई बार आपकी जैसी मूंछें रखने की कोशिश की, रख नहीं पाया। मगर तुझे मेरे जैसी मूंछ क्यों रखने भाई, तो अपना इतना स्मार्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो फेक प्लेजर क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने सपनों में दूसरों को ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी ये कर सकता हूँ, वो मेरा सपना नहीं है बट दूसरों को दिखाना है सिर्फ, और बहुत शॉर्ट टर्म है, जैसे आपने बिल्कुल बोला। तो फेक, जैसे आपने बोला, फेक की जगह से अगर शॉर्ट टर्म कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म फेक ही होता है। पानी का बुलबुला आपकी प्यास नहीं बुझाता, उसके लिए पानी पीना पड़ता है। तो वो शॉर्ट टर्म और फेक प्लेजर है वो बुलबुला है, प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि आदमी बोर बहुत जल्दी होता है। अभी आपका चश्मा देख लिया, फिर किसी और का, नहीं यार ये वो वाला चश्मा लेते हैं यार, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो दिस इज हाउ पीपल आर लिविंग एंड दैट गिव्स देम पेन। आई थिंक मेरे जो 2 सवाल थे ये आपस में मिक्स हो गए, कि जो मैंने पहले बोला कि पीपल टुडे आर डाइंग मोर बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ हंगर। तो पहले इसी की बात करते हैं जी। तो अभी जहाँ तक सवाल है, हमारी एक संस्कृति, एक परंपरा है कि हम कितना भी खाएं जी, कम या ज़्यादा शरीर के हिसाब से, किसी को देख के, क्योंकि आजकल हम खाते भी अलग तरीके से हैं ना। भूख नहीं हो ना, चलो सब खा रहे हैं इसलिए मैं खा लेता हूँ, ख़राब हो जाएगा बाद में खा लेंगे, ठीक है। तो इसे ऐसा है कि टाइम हो गया 3 बज गया, फिर लेट हो जाएगी, फिर पूछेंगे यार अब मेरे वजह से लोग बैठे रहेंगे। तो खाने के साथ साथ हमें एक चीज़ सिखाई गई है हमारी संस्कृति में, उसे कहते हैं उपवास। तो उपवास तो सब भूल गए। जैसे मैं भी कई बार शादी ब्याह में जाता हूँ जी, तो वहाँ पे कोई स्वाद खाना बना होता है, किसी ने 2 बार पूछ लिया और मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। अक्सर लोग इसको ऐसे बोलते हैं मुझे खिला दिया, जिम्मेदारी नहीं थे खुद की, मैंने खा लिया। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने खा लिया स्वाद में, सम्मान में। शराब, शादी में दोस्तों ने शराब पिला दी, मैंने नहीं पी थी। मैंने नहीं पी, तेरे कान पे पिस्टल रखी थी भाई कि तू नहीं पी गया, पाइप लगाया था मुझे ज़बरदस्ती। तो कहने का मतलब मैंने ज़्यादा खा लिया। तो मैं क्या करता हूँ, दोपहर में खाना खाया तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, अगले दिन ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, तो मैं उसको इक्वलाइज कर लेता हूँ। तो पुरानी कहावत है कि लोग बिना खाए नहीं मरते, खाने से मर जाएंगे, क्योंकि आपके पेट को एक पर्टिकुलर प्रक्रिया से गुजरना होता है। मैं पीछे किसी डॉक्टर को सुन रहा था कि आपने खाना दिया पेट को, अब पेट अपना काम कर रहा है, जितने भी अंदर यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है, उस समय वो उस काम को करने में लगाए हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है अंदर, आप जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। आपने ऊपर से उसको नया काम पे पकड़ा दिया कि इस खाने को ही पचाओ। अब आधी टीम उसको छोड़ के इस काम पे लगती है, वो आधा काम अधूरा रह गया और पिछली वाली टीम पे लोड आ गया। तो फिर आपके ऊपर आंतों के ऊपर भी फर्क आएगा, आपके लीवर पे फर्क आएगा, आपकी पैनक्रिया पे फर्क आएगा, आपकी किडनी पे फर्क आएगा, तो बीमारी होगी होगी। आप किसी को ओवरलोड करोगे तो ऐसे ओवर ईटिंग की वजह से परेशानी होती है। सो कैन दिस फेक लाइफस्टाइल हिंडर योर प्रोग्रेस? ऑफ कोर्स। आपका जब शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं होगा। अगर आप सोच के देखो, आपकी उंगली में जरा सी चोट लगी हो या हल्का सा सर दर्द हो, आपका मूड हिल जाता है। यार इसको बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं है, सर दर्द है अंदर से, उंगली में चोट लगी है, कहीं कराहट है अंदर, तो शरीर ठीक नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो हमें ये इंटरव्यू जब शुरू करा था, मैंने 15 मिनट और क्यों मांगे, क्योंकि मुझे पूरी तरह से अपने शरीर को तैयार करके लाना था। मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकता, मुझे कुछ फ्रूट्स खाने थे, बिकॉज यू वांट एनर्जी, ऑडियंस वांट्स एनर्जी। और मैं कहूँ हाँ चलो भाई पूछो यार क्या पूछना था आपको, तो बोले यार ये तो पिछले वाला इंटरव्यू से कुछ अलग ही लग रहा है, ये बंदा वो नहीं है ये। सो एनर्जी हैज़ टू बी देयर। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा शरीर ठीक है, तभी अच्छे मन से काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी एज कितनी है? इफ इट डजंट बॉदर यू, यू कैन टेल मी। इसको अगली बार डिस्कस कर लेंगे। पक्की बात है? हाँ हाँ। नहीं, मेरा इसके ऊपर से एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था जो शायद नहीं देखा, अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरा जो सर्टिफिकेट है, हाँ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, उसमें 1967 लिखी है, आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए। 1967 लिखी है? हाँ जी। 67 से लेके 2000 तक 33, राइट? 33, उसके बाद 24 तक कितने हो गए? 33 प्लस 24 58 आई थिंक। अब जो भी कैलकुलेशन आप लगा लो, मैंने तो बता दिया। 57 जी। ओके, सो अभी आप अगर 57 के हैं और इन फ्यूचर जी, हाइपोथेटिकली जी, इफ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल जी, और इसी साल वो हो गया, तो आप अगर 57 के राकेश आर्या अभी है
और आप वापस जाते हैं जब आप 21 के थे, जी। तो आप अपने 21 ईयर ओल्ड सेल्फ को क्या एडवाइस देंगे 57 के अपना जो 57 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको लेके? देखिए 21 ईयर्स ओल्ड के जो आज की तारीख में जनरेशन है, जी। मैं एडवाइस किसी को नहीं करता, जी। ये मना करता हूँ अपने बिजनेस में ना, एडवाइस कभी नहीं करनी चाहिए। पीपल डोंट वांट एडवाइस, एडवाइजरी इज ए बिजनेस, यू आर नॉट पेइंग फॉर इट फॉर मी। तो मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस के आधार पर दो तीन चीज़ें हैं। उसमें पहली चीज़ है कि उनको रात को समय पर सो जाना चाहिए। हमारी संस्कृति ये कहती है, जो भारत की संस्कृति है, चाहे गांव के लोग हैं, चाहे ऋषि मुनि हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, वो टाइम से सो जाएं। जबकि हमारी वेस्टर्न कल्चर को देख के लोग आजकल क्या करते हैं, इट्स वेरी हैपनिंग प्लेस, इट्स वेरी हॉट प्लेस, नाइट लाइफ 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक, मतलब वो बड़े प्राइड के साथ गर्व से बताते हैं रात को मैं 2 बजे तक डांस किया हमने। वेरी गुड, तो अगला दिन खराब कर लिया आपने। तो रात को समय पर सूरज के साथ सो जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप सूरज के साथ सो जाएंगे तो जल्दी उठेंगे। बिल्कुल। आप देखिए विश्व में जो भी लीजेंडरी लोग रहे हैं, कितने हजार साल पहले या अभी, आप एलन मस्क को ले लीजिए, आप रिचर्ड ब्रांसन को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो राजनेता है, चाहे बिजनेस ओनर है, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, और ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं आपके शरीर के लिए और आपके भाग्य के लिए। ज़्यादा कहना ठीक नहीं है अभी जी, क्योंकि इतना भी कर लिया ना उन्होंने, तो जीवन बदल सकता है उनका। हाँ, इतना तो कर लो पहले। हाँ। ओके, तो जो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले 5 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए वो बात वहीं से आती है। वो स्टार्टअप क्या है, एक पुरानी चाइनीज़ कहावत है, इफ़ यू वांट टू ओपन ए बेकरी यू वर्क इन ए बेकरी। जी। तो हम लोगों को देख के कि यार स्टार्टअप करते हैं कुछ नया, कोई मोदी जी से प्रभावित हो गया, किसी चाचा से हो गया, किसी और किसी बिजनेसमैन से हो गया, उसने इसकी हिस्ट्री नहीं जानी कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो आप ये देखो कि आप अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आपका वो व्हाट और व्हाई जो मैंने शुरू में बताया था क्लैरिटी का, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्टअप के लिए तीसरी चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, व्हाट और व्हाई के बाद आपके पास कितने सोर्सेज हैं, क्योंकि स्टार्टअप हमेशा ये चाहता है कि मुझे कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो इन्वेस्टमेंट जो आपको देगा वो पूछेगा ना कि अभी तक कहाँ पहुँचे हो। आप खाली बैठे हो सिर्फ आइडिया के बेस पे, पैसे कौन देगा आपको? आप बोलो जी मेरे पास 1 लाख रुपये थे, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अगर आप मुझे 1 करोड़ दे दोगे या 10 करोड़ दे दोगे तो मैं यहाँ पहुँचा दूंगा। तो वो 1 लाख की हिस्ट्री उसको बताएगी इन्वेस्टर को कि हाँ यार इसके आइडिया में, इसकी मेहनत में दम है, और वो तब होगा जब व्हाट और व्हाई क्लियर होगा। ओके। अच्छा, आजकल ना ये जो डिजिटल एस्ट्रोलॉजी ऐप्स है ना, इनका भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा है मार्केट में। मतलब इनके जो स्टार्टअप्स है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, राइट? सो मैं एज़ फार एज़ आई नो तो मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो लोगों की इनसिक्योरिटी है, क्या ये जो डिजिटल एस्ट्रोलॉजी ऐप्स है ये उसके साथ खेल रही है? क्या ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है लोगों के, उनके साथ खेल रही है? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी एक गणित है जी, और जो रिलीजन है वो आपकी आत्मा का प्रश्न है जी। तो दोनों को मिलाएंगे नहीं, फिर ना आप बोलोगे दोनों क्वेश्चन आपने मिला दिए जी। तो डिजिटल एस्ट्रोलॉजी की जो बात की, आदमी ये सुनना चाहता है कि कोई मुझे ये कह दे कि तू ठीक कर रहा है, तेरा कल बहुत बढ़िया बीतेगा। वो कहीं इसको सुनने के चक्कर में 10 गाली खा लेगा वो, लेकिन कोई एक बार ये कह दे कल बहुत बढ़िया है, तू ये बहुत बढ़िया कर रहा है। पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस, पीपल वांट अप्रूवल, और उसके लिए कहीं ना कहीं भटक के कोई ना कोई कह ही देता है, क्योंकि उसको तो ऐप चला के बिजनेस चलाना है जी। तो हरियाणा में कहावत है कि एक चौधरी गया पंडित के पास, उसने पूछा कि भाई पंडित जी थोड़ा बताओ यार। बोला चौधरी साहब आपका ना 2 साल वक्त बहुत ख़राब है, कष्ट में बीतेगा। तो बोला उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे है, लोग अपने कर्म पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई मेरे को रेडीमेड कुछ मसाला दे दे कि यार ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कर ले, उसने ऐसे किया था। आप अपना कर्म करो ना। ये बड़ा एस्ट्रोलॉजी और जो आपने दूसरी बात कही कि रिलीजियस के साथ खेल रहे हैं, उसके इन सब के ऊपर एक चीज आती है कर्म। आपने अगर बीज बोया है संतरे का तो संतरा ही होगा। आप कितनी मर्जी गाली दे दो कि यार आम कैसे होगा, कोई एस्ट्रोलॉजी मुझे ये बता दे कि इसमें से आम उगाने हैं, कब उगेंगे, मैं 5-6 साल वेट कर लूँगा। बोला भाई इसमें संतरा ही उगेगा। तो जो आपने कर्म कर रखे हैं पिछले, अब करोगे, उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक गणित है जो आपको नक्षत्रों की दशा बता सकती है कि इस समय सूर्य आजकल इतने बजे उगता है। अब आप इसको सूर्य से लेना देना कुछ है नहीं, ना सूर्य प्रणाम करते हो, ना सूर्य के हिसाब से उठते हो, ना सूर्य के हिसाब सोते हो। बस पंडित जी ये कहते हैं सूर्य की दशा ये है, तेरा ये हो जाएगा, और उसमें अच्छा बता दे कि संतरे के फल बीज से बोए हुए से आम कैसे उगेंगे। वो हो नहीं सकता।
आपको पता है ये जो एस्ट्रोलॉजी एप्स होती है, इसमें जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है लोगों के द्वारा, मतलब जो इन एस्ट्रोलॉजी एप्स का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे रहते हैं, कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? मतलब आर पीपल दैट लोनली और दे डोंट वांट टू डू एफर्ट्स फॉर दिस? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा ना, वहीं भीड़ की बात आती है। लोग ना अपने मन से कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है जी। वो लोगों से प्रभावित होकर दिखाना चाहते हैं कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मैंने भी बना ली। अगेन, पार्ट ऑफ ड्रीम टू प्रूव समथिंग। अब कई लोग उल्टा मजाक में पूछ ही लेते हैं रिश्तेदारी, अरे तेरे कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? अरे बोला यार यही कमी रह गई थी, बार बार पूछ लो, गर्लफ्रेंड ही बना लेते हैं पंडित से पूछ के। सो हमारे जो आसपास का वातावरण है ना, जैसे हमने वेदर की बात की, अब हमारे वेदर में या तो लोग पीछे पड़ रहे हैं, मैंने माँ बाप को देखा है, अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले। अब शादी में गया तो भी पढ़ ले, अरे शादी में आया तो बंदा खाएगा पिएगा, लोगों से मिलेगा, नाच गाना करेगा, वहाँ भी पढ़ ले, मस्ती करेगा। तो आप जहाँ पर जो समय है जिस चीज़ का, उस समय काम करो। आप दूसरों को देख के प्रभावित न हो। आपका जन्म किसी विशेष चीज़ के लिए हुआ है, आप उसको पहचानो, उस पर काम करो। वेरी इम्पैक्टफुल। थैंक यू। सो मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेट करने का, एंड आई होप कि दिस सीरीज गोज ऑन लाइक दिस। हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें, इसी तरह से मिलते रहें। थैंक यू डॉक्टर राकेश आर्या। थैंक यू once again. थैंक यू सो मच। थैंक यू। I am very grateful that you are here with me. सेम है आप। Okay.